I call upon Bipin Bhai Bhai to give a brief introduction of our speaker. Come, Bipin. Dear Rotarians, I had a very keen desire. Am I audible? Yeah. I had a very keen desire to present my friend, Dr. and Professor Arun Bhai Jogdev, who basically taught mathematics and statistics from 1973 to 1985. One would be surprised why a professor of mathematics and statistics turned to naturopathy. This story he will narrate to us in a very moving manner, as his wife suffered from asthma from her age 14 to age 44. That is, for 30 long years she suffered from that. He sought help of allopathy, Ayurveda and homeopathy, but nothing worked. He found the rescue in naturopathy and got her totally cured. If we go through his 6 books on the subject of naturopathy, we will be convinced that prevention is the only cure. The healer lies within. The body has the capacity to heal itself. The main cause of the disease is enervation. Deposit of metabolic end products in the body is disease. Acute disease is a remedial process, itself a cure. Healing is the prerogative of nature alone. Nature heals and the physician only assists nature. He will clear many misconceptions prevailing in the field of healthcare. He will also prove that naturopathy is easy to practice, the treatment is very cheap, it offers permanent cure without any side effects, it is non-violent, innocent and has a humanitarian approach, available to everyone, available everywhere, it is God-given and not man-made, highly scientific, acceptable to body, self-dependent, non-controversial and suitable to Indian psyche. With these few words, I conclude my introductory remarks and request Dr. Arun Bhai Jogdev to share his observations, conviction and experiences of this holistic science, so that Mahatma Gandhi's, this science which was very close to Mahatma Gandhi's heart. Dr. Arun Bhai Jogdev, I think now the floor is yours. As you know, everybody, I am wedded to naturopathy. Naturopathy is my second love. My first love is sitting in front of you. I have decided that I am trying my level best to see to it that clubs like ours, where he gives his lecture only once in lifetime, so to say, then it will be taken care of. Today itself we had arranged one such lecture, and my another dream is that once I would like to engage the entire Thackeray Theatre, this me, for his lecture, and I know that God is going to help me. Sir. We also want to hear. Thank you. हेलो, पारिक जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि नेचुरोपैथी के स्प्रेड के लिए वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। बाद में तो रोटरी क्लब और उनके ऑफिस बेयरर्स, प्रेसिडेंट वगैरह जो है, उनका भी मैं काफ़ी आभारी हूँ कि उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा, जिसे नेचुरोपैथी इंग्लिश में कहते हैं, उसमें इंटरेस्ट लिया और मुझे यहाँ बुलाया। एक ही बात मुझे थोड़ी सी बुरी लग रही है कि ऑडियंस थोड़ा कम है, क्योंकि छोटे ऑडियंस की मुझे आदत नहीं है। फिर भी समय भी अपना ज़्यादा नहीं है, जो अबाउट 50 मिनट्स टू 55 मिनट्स। तो इतने समय में मैं काफ़ी नेचुरोपैथी के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ नेचुरोपैथी। अभी तक
प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी की ब्रांच वैसे तो पॉपुलर तो हुई नहीं है, फिर भी जैसे पारेख भाई ने बताया कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा की ओर क्यों मुड़ा, क्योंकि मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन तो एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आईआईटी वगैरह वगैरह है। विजिटीआई में मैं प्रोफेसर था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एमसीए कोर्स में। फिर भी मैंने यह सब छोड़ के प्राकृतिक चिकित्सा की ओर क्यों मुड़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पैदा होता है। तो शॉर्ट में 2 मिनट में, क्योंकि मुझे नेचुरोपैथी के बारे में ज़्यादा बताना है, बता दूं आपको कि 1973 टू 1985 मैंने एलोपैथी की ट्रीटमेंट मेरी पत्नी को दी। अभी तो पत्नी यहाँ बैठी है, एसी में बैठी है। तो अबाउट 12 इयर्स उसको एलोपैथी की ट्रीटमेंट हुई। जब मेरी शादी हुई 73 में, तो मुझे पता चला अस्थमा है। कुछ फायदा नहीं हुआ, दिन में 4 बार पंप, रात को 2-3 बार पंप। वो ऐसे जैसे गद्दी को ऐसे पकड़ के बैठती थी, रात को सो नहीं सकती थी, वेरी डिफिकल्ट टू लीव। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि भाई व्हाई शी इज नॉट गेटिंग क्योर्ड, आई डोंट वांट ट्रीटमेंट, आई वांट क्योर। तो उन्होंने बताया कि आकाश में बादल होते हैं तो बादल से तकलीफ होती है। मैं बोला वो तो सालों साल रहने वाले हैं। बाद में बताया कि भाई एलर्जी आती है तुअर की दाल की, चने की दाल की, मूंग की दाल की। मैं बोला तो खाना क्या, मत खाओ। बाद में बताया कि पोलन्स होते हैं हवा में, अभी यहाँ भी काफी पोलन्स हो गए क्योंकि काफी नीचे पेड़ वगैरह है। तो उन्होंने बताया कि पोलन्स की एलर्जी रहती है। रात को नींद क्यों नहीं आती, तो बोले चद्दर में माइट्स रहते हैं, यानी सोना नहीं, खाना नहीं, सांस नहीं लेना। तो डॉक्टर बोले दमा दम के साथ जाता है, दम के साथ जाता है यानी मरेगी तब जाएगा, तब तक नहीं जाएगा। Clearly, allopathy is not able to cure asthma. Allopathy is not able to cure blood pressure. Allopathy is not able to cure diabetes. Allopathy is not able to cure obesity. वो बोलते हैं क्योर तो नहीं होगा, ट्रीटमेंट लेते रहो, बीपी की टैबलेट लेते रहो, बीपी की टैबलेट लेते रहो। बीपी की टैबलेट जब लेंगे 3 साल तो किडनी फेल हो जाती है। और बोलते हैं अभी क्रिएटिनाइन बढ़ गया, क्रिएटिनाइन 8.6 जो 2 तक रहना चाहिए, क्रिएटिनाइन बढ़ गया, हमारे पास कुछ इलाज नहीं है, अभी डायलिसिस करो 4 घंटा, वो जो नरक होता है वहां सो के डायलिसिस करो। क्या हालत है, आदमी को किस ढंग से कहां तक पहुंचा देते हैं। अरे जो हेल्दी आदमी है, मेरी पत्नी का वजन 50 किलो था, वो वजन एलोपैथी ने 38 तक घटा दिया और फायदा तो कुछ नहीं होता। 85 में मुझे किसी ने बताया कि भाई होम्योपैथी करो। देखो, आदमी को जब तक नेचर के बारे में मालूम नहीं होता, आदमी को जब तक नेचुरोपैथी के बारे में मालूम नहीं होता, आदमी को जब तक कुदरत क्या है उसके बारे में मालूम नहीं होता, तब तक आदमी बिल्कुल पागल रहता है। आपकी डिग्री यूजलेस है। Unless you know what is nature, unless you know what is nature, कुदरत, नेचर ने मुझे क्या दिया है वो जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा तब तक your knowledge is really useless. Whatever degrees you may have, MBBS, MS, MD वगैरह। तो बात ये बनी कि एलोपैथी को होने के बाद उसको क्या नाक में इंजेक्शन किए, क्या क्या हुआ, मैं डिस्क्राइब नहीं करता। बाद में होम्योपैथी का डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर, जिसके बांद्रा से बोरीवली तक कारखाने हैं, कारखाने यानी दुकान, क्या नाम नहीं लेता। तो उसने ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके ट्रीटमेंट से अस्थमा तो क्योर हुआ ही नहीं, मगर उसके पीठ में बाग आ गया। She got a bad TB, हम किया, वेट 38 का 33 कर दिया और दिन में 4 बार पंप के बजाय 5 बार पंप, रात को भी पंप बढ़ गए। 5 साल ट्रीटमेंट हुई, ऐसे कुछ नहीं कि 6 महीना, 5 साल ट्रीटमेंट हुई होम्योपैथी, कुछ फायदा नहीं। 1985 to 90 देन somebody told me आयुर्वेद करो, अपनी बहुत पुरानी परंपरा वगैरह वगैरह, आयुर्वेद किया। आयुर्वेद ने उसका वजन 33 का 24 किलो कर दिया। इमेजिन, कैन यू इमेजिन दैट small boy over there, he may have the weight of 24 kg, हड्डी रह गई सब।
चल नहीं सकती थी यहाँ तक, यहाँ से दरवाजे तक। वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट अगेन, यहाँ से दरवाजे तक चलना मुश्किल हो गया था, हाफ चलती थी। वो तो अस्थमा के पेशेंट को होता ही है हमेशा। तब 1995 में मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स किया, नेचुरोपैथी का कोर्स किया, पूना में कोर्स किया, 2 साल का कोर्स किया, और मुझे बताया गया कि व्हाट वी ईट इज अ पॉइजन। हम लोग जहर खा रहे हैं। मैं तो साइंस का आदमी था, क्योंकि मेरी डिग्री थी साइंस की है। तो मैं बोला, अरे क्या आप बात कर रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं, इतने आदमी जी रहे हैं, वो क्या पॉइजन खा रहे हैं। मगर बात ये बनी कि 2 साल का डिप्लोमा नेचुरोपैथी का लेने के बाद मैं VJTI में था। VJTI के पीछे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी नाम की बड़ी संस्था है, और वहां फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, और उनकी लाइब्रेरी काफी बड़ी लाइब्रेरी। तो मैं वहां जाके बैठता, और फिर ये फूड कैसे बनाते हैं। देखो, भगवान ने बनाया हुआ फूड नहीं, इंडस्ट्री में बनाया हुआ फूड कैसे बनता है, क्या प्रोसेस करते हैं, वो सब कुलमान्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसके 8 वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम 5-5 हजार पेज का है, वो पढ़ता था मैं। और तब मुझे पता चला, यस, हमको जो बताया गया पॉइजन, वो सच बात थी। अभी जो बताने वाले थे वो पढ़ नहीं रहे थे, तो मैंने खुद पढ़ के वो किताब लिखी, और मेरी किताब का ही नाम इंग्लिश में है क्योर विदाउट मेडिसिन। ગુજરાતીમાં ચોપડીનું નામ છે રોગ ભગાડો વિના દવા। દવાની તમને જરૂરત નથી। हिंदी में नाम है बिना दवा स्वास्थ्य बना। दवा की जरूरत नहीं है आपकी को। तो काफी हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश रोग आणि विकार बरे करा औषधाशिवाय, औषधाची जरूर नहीं। ये किताबें मैंने लिखी, और पहली पेशेंट मेरी थी पत्नी, और मेरा टारगेट था उसको क्योर करना, ट्रीट करना नहीं, क्योर करना। शी शुड गेट फ्रीडम फ्रॉम अस्थमा। और बात बनी, 1.5 साल की ट्रीटमेंट हुई, यानी फ्रॉम 1997 टू 1998 अबाउट। और 1998 से उसका अस्थमा से जो छुटकारा हुआ है, वो 2015 तक न तो वो गोली लेती है, न तो टैबलेट लेती है, न तो पंप लेती है, और आराम से जी रही है, सब खा के, चने की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल। की एलर्जी थी। आयुर्वेद बोल रहा था ककड़ी मत खाओ, सीताफल मत खाओ, अभी तो वो आराम से ककड़ी खाती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। यहाँ से दरवाजे चलना मुश्किल हो गया था। वो गिरनार की 10,000 पगथियां 8 बार चढ़ के आई है। 10,000 8 बार चढ़ के आई है, और अभी आपके सामने यहाँ बैठी है, एसी में बैठी है, कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। वो तो बात छोड़ दो, रिसेंटली 2-3 महीने के बाद शिमला जाके आई, मनाली जाके आई, यानी 0 डिग्री, सब 0 डिग्री बर्फ में आराम से सब गेम वगैरह प्ले करके आई। कुछ नहीं होता। ये सब एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद इज अ होक्स, बंडलबाजी। कोई होगा यहाँ डॉक्टर तो गैर मत मानो, क्योंकि मैं वजह बताने वाला हूँ अभी, सब वजह बताने वाला हूँ। They have controversies, but they don't explain you. बहुत विरोधाभास है उसमें, जैसे बता दूं मैं अभी आपको, वेरी इंपॉर्टेंट बात। एलोपैथी में कौन सा भी ऑपरेशन करने के पहले आपकी शुगर चेक करते हैं, एग्री? शुगर बढ़ती हो, शुगर ज्यादा हो, तो डॉक्टर बोलता ऑपरेशन मत करो। शुगर जब डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा, तो ऑपरेशन करो। क्या आपने पूछा है डॉक्टर को कभी? आपने कभी डॉक्टर को पूछा है कि शक्कर का और ऑपरेशन का क्या ताल्लुक है भाई, क्या संबंध है?
शक्कर का और ऑपरेशन का क्या संबंध है? यदि डॉक्टर ऑनेस्ट होगा, बहुत कठिन बात है, यदि डॉक्टर ऑनेस्ट होगा तो आपको बताएगा कि शक्कर की मात्रा यदि खून में बढ़ गई तो खून की प्रवृत्ति, गुजराती में जिसे परू कहवाय, इंग्लिश में जिसे पेस्ट कहते हैं, हिंदी में जिसे मवाद कहते हैं, मराठी ज्याला पू म्हणतात, वो बनाने में बन जाती है। तो खून की प्रवृत्ति पस में फॉर्म होती है और आपके ऑपरेशन के टाके जो है वो सड़ जाते हैं, उसके कहते हैं गैंग्रीन, और गैंग्रीन में आदमी मर जाता है। मतलब शक्कर का ताल्लुक पस बनाने में है। अभी मुझे कहो कि ठीक है, मेरा ऑपरेशन जब नहीं हुआ तो शरीर को पस तो फेंकना है, तो ये पस कहां से निकलता है? नाक में से निकलता है, जिसका कलर होता है हरा पीला। गले में से निकलता है कफ, जिसका कलर होता है हरा पीला। शरीर कोई भी कचरा अपने अंदर नहीं रखती, हमेशा बाहर फेंकने की कोशिश करती है। इसीलिए मेरे घर में शक्कर का डब्बा है ही नहीं, शक्कर का डब्बा है ही नहीं। जरूर क्या है मेरे को शक्कर की, मेरे को शक्कर का भाव भी मालूम नहीं, मार्केट में क्या चलता है, 40 रुपया, 400 रुपया, 4000 रुपया, पता नहीं, जरूरी नहीं है आदमी को। शक्कर की जरूरत किसको है? अभी जिसको कैंसर हुआ है उसको है, जिसका मुंह टेढ़ा हो गया उसको है। हमको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्कर बनाते समय इतने गंदे केमिकल का इस्तेमाल होता है। वन ऑफ द केमिकल इज कॉल्ड द फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड इज द वर्स्ट केमिकल। पूरे केमिस्ट्री में बताया कि फॉर्माल्डिहाइड केमिकल से कैंसर होता है, स्किन डिसीज होते हैं, बाल नष्ट होते हैं, आंख की रोशनी कम हो जाती है, सब पता है। फिर भी वो सस्ता इंसेक्टिसाइड है, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगला सवाल आप शायद पूछेंगे कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल क्यों होता है? बहुत आसान समझने में बात है कि गन्ने का रस आप जब दुकान में पीते हैं तो मीठा लगता है, घर में लाके रखो एक घंटा खट्टा पड़ जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। अभी शक्कर सब बनाते समय बैक्टीरिया बढ़ गए तो शक्कर कैसे बनेगी? कि टू किल द बैक्टीरिया दे आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, दैट इज कॉल्ड द फॉर्माल्डिहाइड। बाद में डीकलर सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, चूहा मारने की दवा, ये भी इस्तेमाल होगी। जाने दो, छोड़ दो, क्योंकि उसमें समय जाएगा तो मैं नेचुरोपैथी के बारे में बात नहीं कर सकूंगा। तो इतने सारे गंदे केमिकल, यदि आपको देखना है कि भाई जोगदेव साहब भाई कुछ भी बोगस बता रहे हैं, तो एक बार सतारा सांगली में जाके आओ, नाक पकड़ के आपको जाना पड़ेगा वो शक्कर की फैक्ट्री के साइड से, क्योंकि इतना गंदा वो केमिकल का स्मेल आता है। हमको मीठी लगती है इसीलिए हम खा रहे हैं, मीठी लगती है इसीलिए खा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात बनी है, एक 5 मिनट में बता दूं। मेरे एक पेशेंट पाटिल नाम के यहाँ आ गए, खड़े रहे। इनको प्राकृतिक चिकित्सा में काफी इंटरेस्ट हुआ, तो ये रहते थे बड़ौदा में। उनको कान में से मवाद निकलने लगा, मवाद यानी परू निकलने लगा। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने यहाँ से एक्सरे निकाला, यहाँ से एक्सरे निकाला, यहाँ से एक्सरे निकाला, बहुत सारे एक्सरे निकाले और बताया कि आपके कान की हड्डी सड़ रही है अंदर से, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन का खर्चा क्या होगा वगैरह वगैरह, तो बताया 40,000 50,000 कुछ बताया होगा। बाद में उन्होंने पूछा डॉक्टर को कि भाई ऑपरेशन करने के बाद मुझे सुनने को मिलेगा, सुनने को आएगा, क्या गारंटी? तो बताया वो तो नहीं, मगर फिर कान को मशीन लगाओ, सुनने को नहीं आता तो उन्होंने बताया कि आई विल टेक सेकंड ओपिनियन। मैं सेकंड ओपिनियन लेता हूँ। वो मेरे घर पे आए, मेरे घर पे आए, सब बयान किया, मुझे बताया सब कि भाई ऐसा ऐसा है, ये बात है। मैंने कहा आप एक काम करो कि आपकी शुगर चेक करो। तो उनको डाउट हुआ क्या मेरे को क्या डायबिटीज है क्या? मैं बोला इट इज नॉट अ डायबिटीज, इफ शुगर लेवल इज बियॉन्ड 100, रेंज है उसकी 80 to 120, 100 से ऊपर गई तो डेफिनेटली आपका कान का मवाद जो निकल रहा है वो बंद होने वाला नहीं है। उन्होंने शुगर चेक की, कुछ 106 निकली। मैं बोला 106 शुगर
चलेगी भी नहीं, इट शुड कम डाउन टू 85, 84, 83। उन्होंने मुझे पूछा कि भाई ये कैसे करेंगे, क्योंकि उस समय उनको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ मालूम नहीं था, कैसे करेंगे। मैं बोला यस, शुगर अवॉइड करो टोटली और हैव अ डाइट व्हिच विल बी ओनली बेक डाइट। बेक क्या है? सेका हुआ, जैसे रोटी है, भाकरी है, ये सब सेका हुआ डाइट। बेक डाइट विथ रॉ चटनी। वो बोले चटनी के साथ? देखो अभी चटनी के साथ मैं डाइट कैसा खाऊंगा, क्योंकि उनको लगा था कि चटनी मतलब मिर्ची की चटनी। मैं बोला इट इज नॉट मिर्ची ओनली, टमाटर की चटनी है, बाद में कोकम की चटनी बनती है, खोपरे की चटनी बनती है। अरे बोले यस, इतनी चटनी जब आप बता रहे हैं तो डेफिनेटली आई कैन पुल ऑन। 18 दिन उन्होंने बेक डाइट चटनी के साथ खाया, उनका पस बन। मगर उनको थोड़ी कॉलर टाइट करके वो फिर डॉक्टर के पास गए और बोले देखो मेरा कान का पस बंद हो गया। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि भाई बस भले बंद हो गया होगा मगर अंदर सड़न चालू है डेफिनेटली, तो ब्रेन को तकलीफ हो सकती है। तो फिर वो और दूसरे डॉक्टर के पास गए एलोपैथी के, उन्हें बताया काय को तू जा रहा है, तेरा कान का पस बंद हो गया है, तो क्यों जा रहा है। वो डॉक्टर ने बताया कि देखो फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। उसको कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल में कुछ कान में पस वगैरह निकला नहीं है अभी, और कान की सड़न भी हुई नहीं, ब्रेन वगैरह ठीक है सर। शक्कर इतनी बर्बाद लाइफ को करती है, तो ये तो एग्जाम्पल है यहाँ। अभी मैंने देखा कि चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मुझे क्योंकि अभी की बात बता रहा हूँ, आज की तारीख है 4 ना, 4। 1 तारीख को घाटकोपर से नहीं थाना से पेशेंट आया मेरे यहाँ, उम्र 13 साल की थी, अस्थमा के काफी पेशेंट आते हैं। 13 साल की उम्र, मेरे को डाउट आया कि ये लड़का चॉकलेट खा रहा है। मैंने पूछा कौन से चॉकलेट खा रहा है, तो बोला जो मिलते हैं वो डेयरी मिल्क या बाद में वो और क्या कैडबरी वगैरह वगैरह वो खाता हूँ। मतलब पहले एक काम करो, ये लड़की की चॉकलेट वगैरह बंद कर दो। जिस बात से शक्कर पेट में जा रही है वो सब बातें बंद कर दो। कल ही उसके वाइफ का मदर का फोन आया, मदर का कल ही फोन आया कि जो बच्चा रात को सो नहीं रहा था वो 2 दिन आराम से सो रहा है। 1 दिन में फर्क हो गया, चॉकलेट बंद कर दी। टेरामाइन नाम का सब्सटेंस चॉकलेट में जो है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। मैं आपको कुछ संदेश नहीं दूंगा, मगर ये कहूंगा कि यदि ये चॉकलेट के बदले आप एक सफरचंद देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात बनी, प्राकृतिक चिकित्सा में शक्कर को सबसे खराब पॉइजन समझा जाता है। तो महिला में शायद मुझे यहाँ बैठी है जो पूछेगी कि शक्कर से खाएंगे तो क्या, मैंने स्वीट खाने को नहीं बोला। स्वीट यू कैन हैव डेफिनेटली, क्योंकि भगवान ने कुदरत ने आपके लिए जो बनाया है, जर्दालू है, अंजीर है, काफी स्वीट चीजें हैं, वो खा सकती है। हनी, बेस्ट हनी यू कैन हैव श्योरली, मगर उसका भी शॉर्ट सोच समझ के पेट में जाना चाहिए। गुड़, इतने टाइप के गुड़ बनते हैं, ऑर्गेनिक गुड़, रेड कलर का जो होता है वो भी बनता है। महिलाओं याद रखिए, गुड़ सफेद कलर का मत खरीदिए, क्योंकि गुड़ सफेद बनाने के लिए निरमा का इस्तेमाल होता है। Yes, they wash it like a cloth. As you wash your clothes, they wash the good. सफेद बनाते हैं। यदि निरमा नहीं मिला तो कास्टिक सोडा नहीं मिला तो डिटर्जेंट, एनी टाइप ऑफ डिटर्जेंट दे ऐड एंड दे मेक इट व्हाइट। तो तिलगुल के लड्डू भले रेड कलर के हो, रेड कलर के हो, पूरन पोली यदि रेड कलर की बने तो रेड कलर की बनाओ, सफेद बनाने की कोशिश मत करो, नहीं तो आप पूरा फैमिली बर्बाद कर देंगे। काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं मार्केट में, मुझे पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं।
अरे गुड़ का कलर नेचुरल रेड है, रेड रहने दो ना। तेरे बाप का क्या जाता है, उसको काय को सफेद बना रहा है केमिकल डाल के। अभी क्या बातें बनती है कि जो गुड़, निरमा डाला हुआ गुड़ यदि आपके गले में जाएगा, निरमा हाथ को लगा तो हाथ की चमड़ी निकल जाती है, तो गले में लगा तो क्या होगा? अस्थमा के अटैक छोटे बच्चों को क्यों आ रहे हैं? यही वजह है कि गलत खान पान हो रहा है। दूसरी बात, मेरे घर में डालडा नहीं आ रहा। आप बोलेंगे यहाँ महिला तो आम डालडा नहीं खाते, हर एक बिस्किट डालडा में पकता है। आपके पास में अभी बिस्किट होगा शायद। हर एक बिस्किट का बेकिंग डालडा में होता है। नीचे लिखा हुआ होता है HVO, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। उसके नाम काफी है, मार्गारीन, स्टिक मार्गारीन, कमर्शियल फैट, सब डालडा। डालडा क्यों नहीं खाना? क्योंकि डालडा बनाते समय उसको सफेद कलर लाने के लिए उसको कॉस्टिक सोडा से धोते हैं, NaOH, कॉस्टिक सोडा से धोते। कॉस्टिक सोडा न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धोते। अरे भगवान ने तेल बनाया है, हमारे भगवान श्री कृष्ण घी खाते थे, वो क्या कॉस्टिक सोडा डाला हुआ खाते थे क्या? अभी कॉस्टिक सोडा पेट में गया तो कोलाइटिस वगैरह तो होने वाला ही है डेफिनेटली। कॉस्टिक सोडा और क्या करेगा? क्योंकि मैंने जब केमिस्ट्री, मैंने बायोकेमिस्ट्री में भी किताब लिखा, मैथमेटिक्स का आदमी हूं, फिर भी बायोकेमिस्ट्री की किताब लिखा, क्योंकि मुझे ये देखना पड़ा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग 10th स्टैंडर्ड में बहुत इंटरेस्टिंग बातें सीखते हैं, NaOH plus HCl is equal to NaCl plus H2O। हमको लगता है कि कॉस्टिक सोडा के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ट्रीटमेंट दी तो वो निकल जाएगा। जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ी तो मुझे पता चला कि देयर इज अ लीकेज, इंडस्ट्रियल लीकेज कॉल्ड एज। और इंडस्ट्रियल लीकेज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा सा तो बचने वाला है ही, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचेगा तो ये तेल और घी खराब हो जाएगा। इसीलिए उसमें बाद में कॉस्टिक सोडा 52 किलोग्राम पर 100 लीटर ऑफ ऑयल डाला जाता है। सोच लो अभी क्या खा रहे हैं। और टीवी पे ऐड आती है, रिफाइंड ऑयल, छोटा हार्ट बड़ा हार्ट, छोटा हार्ट बड़ा हार्ट। हार्ट तो सूजन ही आती है और बड़ा होता है। तो फिर सवाल आएगा कौन सा घी खाए? प्योर घी, घर पे जो बनाया हुआ, घर पे जो बनाया हुआ प्योर घी खाइए, नहीं तो भी कोई कंपनी बनाती होगी तो प्योर घी खाइए। तेल कौन सा? तेल ऑर्डिनरी तेल, जिसको फिल्टर किया हुआ, छाना हुआ। हमको केमिकली ट्रीटेड तेल नहीं चाहिए। फिल्टर, डबल फिल्टर, कौन सा भी? काफी फिल्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे गिनी फिल्टर, के फिल्टर, दारा फिल्टर, बहुत सारी कंपनियां फिल्टर तेल बनाती हैं। मगर टीवी पे जो ऐड आती है, हार्ट छोटा हार्ट बड़ा, उस पे मत जाइए। रिफाइंड ऑयल से यदि हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती थी तो अमेरिका आज हार्ट फ्री हो जाती है, नहीं हुई है। नंबर 1 पे है अमेरिका हार्ट पे। सोच लीजिए क्या बातें हमको बना दें। अरे वो डायबिटीज का पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो बोले तो राइस पर खा भाई, राइस तकलीफ देता है। तो मैं डॉक्टर को बोलता हूँ 40 करोड़ साउथ के लोग राइस ही खा के जिंदगी बिता रहे हैं। इडली खाते राइस की बनी हुई, डोसा खाता राइस का बना हुआ, तैर साधन खाते रात को भिगा हुआ राइस खाते, सुबह उठ के हमारे कोकन के लोग भी राइस खाते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत बातें बताई जा रही, क्योंकि उनको क्योर नहीं करना मालूम। उनको मालूम नहीं कैसे क्योर किया जाए। क्योर जब नहीं करते तो कुछ भी बातें बता देते, उल्टी सुल्टी कुछ भी बातें बता देते जो इंग्लैंड अमेरिका से आती। तो मेरे घर में बिस्किट नहीं आते, मेरे घर में चाय कॉफी भी नहीं बनती, क्योंकि चाय में टैनिक एसिड, टैनिन, ये नाम के जो 2 सब्सटेंस है। देखो मैंने डिग्री बताई मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर वगैरह, उसके साथ मैंने एज 64, 65, 66 में लॉ किया है और मैं अभी LLB हाई कोर्ट में वकील हूँ। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ झूठ बातें नहीं बता रहा हूँ। आप मुझे मेरे पे केस कर सकते हैं मेरे बारे में कि भाई ये क्या आपको बता रहा है कि कॉस्टिक सोडा इस्तेमाल होता है। मैं आपको उलमान्स एनसाइक्लोपीडिया की किताब बताऊंगा कि देखो इस किताब में लिखा है।
आगे भी और बता दूं आपको तो आप यहाँ से भाग जाएंगे। आप जो वैनिला आइसक्रीम खाते हैं, वैनिला खाया होगा, खिलाया होगा, आज भी खाया हुआ होगा मालूम नहीं। ये देखो हाथ ऊपर कर रहा है। ये वैनिला सस्ते में सस्ता जो है वो डामर से बनाते हैं। हाँ? मेरे भी केस डाल सकते हैं ना, मैंने बताया कि क्या झूठा बोल रहा है आदमी, मेरे भी केस डालता हूँ कोर्ट में। तो मैं आपको फ्लेवर फ्रेग्रेंस का किताब बताऊंगा जिसमें लिखा है कि डामर कोल्टार उससे पहले बनाते हैं पाइप्रोनाल, बालों की जू मारने की दवा, और पाइप्रोनाल से बनाते हैं वैनिलीन जिसे वैनिला का स्मेल आता है। 20 रुपये की बॉटल बहुत सस्ती मिलती है। भगवान ने डामर से नहीं बनाया, भगवान ने पेड़ से बनाया। तो बच्चे को जरूर आइसक्रीम खिलाओ, मगर घर पे वैनिला की स्टिक लेके आओ जो 30 रुपये में एक मिलती है। 1 किलो स्टिक की कीमत 3 लाख रुपया है। वो आइसक्रीम कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। ऐसे 2000 केमिकल मार्केट में है। वो बोले बच्चों को मैंने खिलाया, वो पाइनएप्पल का आइसक्रीम खिलाया, वो पाइनएप्पल नहीं होता, एथिल ब्यूटरेट नाम का चमड़ा साफ करने का केमिकल होता है जिसको स्मेल आता है पाइनएप्पल का। तो ऐसे आप यदि केमिकल खिलाएंगे तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर की लाइन लगी हुई होती है। पता नहीं चलता मम्मी को डैडी को क्या बच्चों को खिला रहे हैं। वो बच्चा 2 कप 3 कप ला रहा है। अरे जाओ ना, वो स्टिक लेके आओ, एक छोटी इतनी भी स्टिक डाल देंगे तो दूध को इतना सुंदर स्मेल आएगा, पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगा। तो मेरे घर में डालडा नहीं आता, मेरे घर में रिफाइंड ऑयल नहीं आता, फिल्टर ऑयल, छाना हुआ तेल, डबल फिल्टर होगा तो भी। मेरे घर में प्योर घी बनता है। तो ऐसी जब बातें मेरे घर में होना शुरू हो गया, यानी मैं खाता हूँ रिच फूड, ऐसे नहीं कि भाई कोई उबली हुई चीज खाना वगैरह, ऐसे नहीं की बात, मगर पहली बार बता रहा हूं कि योर स्टमक इज नॉट अ केमिकल टैंक टू ऐड फॉर्मल्डिहाइड, टू ऐड phosphorus pentoxide, to add caustic soda, to add हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका पेट इसीलिए नहीं बना। आपका पेट बना है दाल चावल रोटी खाने के लिए। भले रोटी का पराठा बनाओ, भात का पुलाव बनाओ, मगर वो खाने के लिए आपका पेट बना है, आपका पेट केमिकल खाने के लिए नहीं बना है। इसीलिए जब शादी में मैं जाता हूँ तो वो लाइन को नहीं जाता, जलेबी गुलाब जामुन की लाइन, आइसक्रीम की लाइन को नहीं जाता। जहाँ दाल भात चावल गरम रोटी मिलेगी वो लाइन को मैं जाता हूँ। यदि कोई आइसक्रीम वाला बताएगा कि नहीं हम वैनिला स्टिक से वैनिला बनाते हैं, शुगर के बदला हम बेस्ट टाइप जैगरी, क्योंकि जैगरी में भी बहुत वैरायटीज है। ताड़ के झाड़ से जैगरी बनती है, नारियल के झाड़ से जैगरी बनती है, नीरा जो हम पीते हैं उससे जैगरी बनती है, काफी सुंदर सुंदर जैगरी बनती है, जिसको काफी कोई जैगरी को कलर भी नहीं होता, वो जैगरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग ढंग की जैगरी इस्तेमाल करके आप आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं। सवाल आएगा फिर आइसक्रीम को ग्रीन कलर कैसे लाएंगे? तो ग्रीन कलर जो है उसको कहते हैं एजोडाई, जो मार्केट में मिलता है वो डाई है। अरे पिस्ता का इस्तेमाल करो, पिस्ता इस्तेमाल करेंगे तो ग्रीन कलर का आइसक्रीम बनेगा। रेड एमरल्थ रेड वो भी डाई है, तो डाई का इस्तेमाल मत करो। चेरीज है रेड कलर के, चेरीज का इस्तेमाल करो, आइसक्रीम रेड बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप घर पे सब कर सकते हैं। होटल में गए तो पहले वेटर को कहना कि सूप लेके आओ। कौन सा सूप? मिक्स वेजिटेबल सूप। मगर जरा बड़े से बोलो, आवाज चढ़ा के बोलो, उसमें अजिनोमोटो मत डाल, क्योंकि अजिनोमोटो को कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और उससे जो बनता है, उससे जो डिसीज होता है, उसका नाम ही है चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। रोग का नाम है चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। चाइनीज होटल में जाके ये खा के दूसरे दिन सर्दी
दर्द होना शुरू हो जाता है, आधा सर जिसे कहते हैं माइग्रेन वो शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यूरल सिस्टम पे असर होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बनी, एक 31 साल की लड़की आई ट्रीटमेंट के लिए, मैं ट्रीटमेंट देता हूं, बैठी थी सामने, और सामने जब बैठी कुर्सी पे तो हाथ हिलने लगे, ऐसे पैर भी हिलने लगे। मैं बोला 31 साल की यंग लड़की और हाथ हिल रहे हैं, पार्किंसन, पैर हिल रहे हैं, पार्किंसन क्या? तो मैंने बोला आप क्या काम कर रही है? तो बताया कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर चलेगा कैसे, आप हाथ हिलेंगे तो नहीं, अभी हो नहीं सकता, काम न हो नहीं सकता। तो फिर मैं ओरिजिनल पे आ गया, क्या खा रही है आप बताइए? तो उसने बताया कि मेरे घर में मम्मी डैडी नहीं है, कोई खाना बनाने के लिए नहीं है, तो 11 साल से मैं चाइनीज खा रही हूँ। एक दिन में असर नहीं होता, इतने खराब असर एक दिन में नहीं होते। एक दिन सिगरेट कुछ असर नहीं होगा, 1 साल के बाद पता चलेगा अभी खांसी हो रही है, और 1 साल जाएगा बाद में पता चलेगा खांसी में से खून निकल रहा है, और थोड़ा समय जाएगा बाद में पता चलेगा कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, जो बोलेगा आइदर टीबी और कैंसर। तो तुम्हारा शरीर बहुत सहन करता है, बहुत सहन करता है। जब लिमिट से एक्सीड हो जाते हैं आप, तो फिर उसके रिस्पॉन्सेस मिलने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर को पता नहीं चलता, वो कुछ भी ट्रीटमेंट देता है। और एक आपका बहुत दाखला देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे पास 2500 से ज्यादा पेशेंट आए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया से आते हैं। तो मैं पनवेल में गया था, तो वहाँ एक 6 महीने का बालक मेरे सामने एक महिला लेके आई लेक्चर के बाद, और मुझे बताना शुरू कर दिया उसने कि भाई ये बच्चे को अस्थमा के अटैक आ रहे हैं, नहीं ये मिर्गी के अटैक आ रहे हैं, मिर्गी यानी मुंह में से फेन निकलता है वगैरह वगैरह, मिर्गी के अटैक आ रहे हैं। बोला 6 महीने का बच्चा, उसको दांत भी नहीं निकले, वो खाना भी नहीं खाता, और मिर्गी के अटैक? तो मैंने मम्मी को बुलाया कि भाई जरा मुझे समझाओ कि क्या हो रहा है। तो समझाने में बहुत मुश्किल था उसके लिए, तो मैंने उसको पूछना शुरू किया कि भाई तू क्या खा रही है, क्या पसंद है तुझे ज्यादा? तो उसने बताया कि मुझे सबसे डालडा पसंद है, मैं कटोरी में डालडा लेके चम्मच से खाती हूँ। इसको शौक है, वो 1 चम्मच खा के देखिए क्या होता है, अरे तुरंत गले में खिचखिच शुरू हो जाएगी, तुरंत पॉस्टिक सोडा है। रोटी को डालडा लगा के खाती हूँ, डालडा में बनी पूरी मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा कि ये महिला सुधरने में बहुत मुश्किल है। बच्चों को वहां से छुड़वाया, क्योंकि दूध जो बनता है ये पूरा डालडा से ही बनता था, और वो बच्चों को मिल रहा था। दूध बंद कर दिया, और बच्चों को मूंग का पानी, फ्रूट जूसेस और अलग अलग ढंग के सूप, जो अभी मैं बात करूंगा आखिर के 20 मिनट में, अलग अलग ढंग के सूप वो देना शुरू कर दिया। बच्चे के मिर्गी के अटैक 1.5 महीने में खत्म हो गए। यदि वो अभी डॉक्टर के पास जाती थी एलोपैथी के, तो एलोपैथी का डॉक्टर वो बच्चे को गार्डिनल नाम की दवा देता था, और गार्डिनल नाम की दवा से पहली बात होती है किडनी फेल। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे 1.5 साल का बच्चा किडनी फेल कैसे हो गया, वो दवा से किडनी फेल। तो ये सारी बातें हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। प्राकृतिक चिकित्सा में यदि आप मुझे फोन करेंगे कि भाई जोगेश साहब मुझे ये बीमारी है, मैं आपके पास आऊँ क्या, तो मैं पहले आपको पूछूंगा आप चाय कॉफी शक्कर बंद करने के लिए तैयार है क्या, तो ही मेरे पास आओ, नहीं तो मत आओ ही मत मेरे पास, बीमारी ठीक होने वाली नहीं। तो अभी लास्ट पार्ट में, क्योंकि अभी तक मैंने बताया क्या नहीं खाना है, देखो फिर से एक शॉर्ट में मैं रिपीट करता हूँ क्या नहीं खाना है। सुबह उठ के चाय कॉफी नहीं पीना है, क्योंकि मैंने कोई भी प्राणी, कुत्ता सुबह दौड़ लगाता है मगर पहले कहता है नहीं मैं चाय पी के आता हूँ, नहीं देखा मैंने। कोई भी बिल्ली मैंने नहीं देखी कि भाई सुबह कॉफी पी के आती है और फिर दौड़ने लगती है, नहीं देखा मैंने। कोई भी प्राणी ये काम नहीं करता, मगर वो प्राणी अपने प्राकृतिक आहार जो भगवान ने दिया हुआ प्राकृतिक आहार है उस पर ही डिपेंडेंट है। बाद में मुझे बहुत सारे बताया कि भाई योगा, मैं बोला योगा कौन सा प्राणी करता है योगा? सुबह उठ के कोई भी कुत्ता मैंने नहीं देखा कि हाथ पैर वगैरह हिलाता है। हाँ, थोड़ी कसरत करता है, दौड़ता है, वो तो करना ही चाहिए,
यहाँ से स्टेशन पे जाने के लिए रिक्शा बस नहीं, चलते जाओ, जितना हो सके उतना चलो। कुछ खा लिया है गलत, हजम करो उसको चल के, चलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको एक पेशेंट की बता दूं यहाँ खान पान के बारे में। डायबिटीज, शुगर 405, महाराष्ट्रियन आदमी था, बोरेवली का ही आदमी था। 405 यानी डॉक्टर तो बोलेगा अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाओ। तो उसको लगा कि कोई जंतर मंतर करके हो सकता है, तो दादर में गया। तो दादर में एक नासिक से आदमी आता था और वो आदमी क्या करता था, वो कान को कुछ विनना यानी होल गिराना ऐसा कुछ करता था। तो बोला कि कान को मैं यदि आपको विन दूंगा यानी कान को छेद दूंगा तो आपका शुगर इमीडिएटली कम हो जाएगा, आप कल जलेबी खा के आ जाओ। तो उसने कान को होल गिराया। दूसरे दिन वो जलेबी खा के गया, चेक किया तो शुगर 420। तो वो उसका वो इंस्ट्रूमेंट लेके नासिक भाग गया। तो ऐसे नहीं बनता कुछ। आपका जो रोग है ना वो जंतर मंतर करके ठीक नहीं होने वाला, नहीं होता वो। जब तक आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी तब तक वो नहीं बनता। और लाइफस्टाइल चेंज हो गई तो रोग रुकता ही नहीं है, इमीडिएटली भाग जाता है, इमीडिएटली भाग जाता है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के दो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो अभी मुझे ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं फास्ट बोलूंगा। पहला स्टेटमेंट है इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन इज द हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी यानी रोग। इरिटेशन, शरीर में कहां भी जलन। इन्फ्लेमेशन, आग। शरीर में कहां भी जलन और आग शुरू हो गई तो समझ लो रोग शुरू हो गया। Irritation and inflammation is the history of pathology. जैसे मुंह में स्टोमेटाइटिस, आइटिस आखिर में आग होती है, फोड़ले आते हैं, बाद में वहां से परू निकलता है। गैस्ट्राइटिस, पेट में दुखना शुरू हो जाता है, अंदर का पोर्शन म्यूकस लाल हो जाता है, गैस्ट्राइटिस। मेनिंजाइटिस, सूजन आती है दिमाग को। हेपेटाइटिस, लीवर को सूजन आती है। ये सब सूजन आने के जो तकलीफ है इसको कहते हैं आइटिस। और जो आइटिस ये फर्स्ट स्टेज है बीमारी की, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन इज हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि डालडा बंद करो। अरे जब एक चम्मच खा के मेरे गले में खिचखिच हो रही है, काय को पेट में डाल रहे हैं अंदर, वो जैसे नीचे नीचे जाएगा वैसे अलग अलग ढंग के आइटिस पैदा करेगा। गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, आइटिस सब पैदा हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। रिफाइंड ऑयल, कास्टिक सोडा से धोया तेल को काय को खा रहे हो, जलन हो जाएगी। इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन द हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोब्स इज नथिंग। रोग जंतु कुछ नहीं है, फालतू है। माइक्रोब्स इज नथिंग, सॉइल इज एवरीथिंग। सॉइल का मतलब जमीन नहीं, कचरा। कचरा, जब ये डिश खराब हो जाती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल सॉसर, सॉइल कप, सॉइल शर्ट। खराब हो गया, खराब हो गया, लॉन्ड्री में दे दो, सॉइल शर्ट। माइक्रोब्स इज नथिंग, रोग जंतु कुछ नहीं है, सॉइल इज एवरीथिंग। आपके शरीर में खुद में जो सॉइलेज पैदा हुआ है वही रोग की जड़ है, वही रोग का बेस है। तो अभी शॉर्ट में बता दूं आपको कि ये जड़ कैसे पैदा होती है। कंप्यूटर में जिसको इंटरेस्ट है वो जरा एक कमांड दीजिए गूगल में जाके, कैपिटल ए, कैपिटल जी, कैपिटल ई, एज, कैपिटल ए, कैपिटल जी, कैपिटल ई, कॉमा, एक्सप्लेनेशन, मुझे बताओ। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, शक्कर खा के आपके खुद में क्या क्या बनता है वो बताया। प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट डिस्टर्ब हो जाते हैं, फैट डिस्टर्ब हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसे कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। साइंस को अभी मालूम हो रहा है, मैंने 1998 में बताया, 17 साल के पहले बताया। मगर जो कि इंडिया का आदमी है, क्या रहता है, मलाड में रहता है, कौन पूछेगा वो क्या डॉक्टर है क्या, MBBS MS है क्या, नहीं। तो ये बातें हैं सब, समझ जाओ
कि इरिटेशन इन्फ्लेमेशन कहाँ भी नहीं होना चाहिए। आपका खून जो है वो प्योर रहना चाहिए, कि जिसमें कहाँ भी गड़बड़ नहीं हो, ये शक्कर खा के वगैरह वगैरह वगैरह। तो बच्चों को ये प्रोटीनेट सुबह उठ के मत खिला। मैंने कोई भी हनुमान जी के सामने प्रोटीनेट का डब्बा नहीं देखा है। महावीर हमारे बहुत बड़े हो गए, उनके सामने मैंने तो अपना बूस्ट का डब्बा नहीं देखा। क्या माता एक बार वो ब्रेस्ट फीड छूट गया ना, तो तुरंत वो कटोरी में दूध लेगी, उसमें शक्कर डालेगी। अरे कभी शक्कर डाली थी क्या? कोई भी गाय अपने बछड़े को शक्कर डाल के दूध पिलाती है क्या? क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों गलत काम कर रहे हैं? जरूर नहीं है। प्योर दूध से आपका बच्चा काफी मजबूत हो जाएगा। प्योर माखन से हमारे भगवान श्री कृष्ण 120 साल की उम्र में महाभारत की लड़ाई लड़ते थे। 140 की उम्र में भीष्म पितामह 10 दिन अर्जुन के साथ लड़ रहे थे। अर्जुन की उम्र थी 80 साल, जो 18 दिन लड़ रहा था। और 80 साल के बाद वो हिमालय में गया और उलूपी नाम की राजकन्या से विवाह किया और बाद में उसको लड़का भी हो गया। 88 साल में 88, अरे 88 साल में मेरे को आंख पे चश्मा लग जाएगा, हाथ में लकड़ी आए, रोड क्रॉस करूंगा कि नहीं पता नहीं। क्योंकि उस समय में ये कैंसर वाले शक्कर नहीं बना रहे थे, उस समय में इंडस्ट्री में डालडा नहीं बन रहा था, उस समय में रिफाइंड ऑयल नहीं बन रहा था। पूरी चीज जो बन रही थी वो प्राकृतिक, नेचुरल। तो लाइफ भी नेचुरल था उनका लाइफ भी नेचुरल। तो ये मत सोचिए कि नहीं एक दिन मरना ही है तो खाके मरेंगे। अरे खाके जरूर मरो, मगर अच्छी चीज खाओ। क्या मेरे घर में पूरनपोली नहीं बनती है क्या? जरूर बनती है, मगर प्योर गुड़ में बनी। तो मैं अभी लास्ट 10 मिनट है, वहां बता दूंगा कि मैं क्या खा रहा हूं। प्राकृतिक चिकित्सा में मैं क्या खा रहा हूं। सुबह उठ के चाय कॉफी तो मैं कभी नहीं पीता, तो सुबह उठ के मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग ढंग के जूसेस लेता हूँ। अभी वो जूस की प्रॉपर्टी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने विपिन भाई को बताया था कि भाई यहाँ जो लोग आएंगे वो पेंसिल पेन लेके आएंगे तो अच्छी बात बनेगी। गाजर आंख की बीमारी पे सबसे बेहतर इलाज है गाजर। तो गाजर का जूस लेना शुरू कीजिए तो आपका चश्मा भी शायद उतर जाएगा। आंख की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। आपको भी समय नहीं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, मलाड के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही मेरे पास आए। यहाँ भी आपको एक दाखला दे दूं, बहुत इंटरेस्टिंग दाखला है। मैं जोधपुर में नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल में मुझे बुलाया गया था, यही लेक्चर के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब मैं गया तो दूसरे दिन एक महिला को 2 जन पकड़ के लेके आए। उसके महिला के आंख में से पस निकलता था। तो डॉक्टर ने, ये डॉक्टरों को इंटरेस्ट रहता है, बहुत बड़े बड़े नाम देते हैं, स्टीवन जॉनसन डिसीज। मैं बोला स्टीवन जॉनसन डिसीज यानी उसको दिख नहीं रहा है, आंख में से परू निकल रहा है। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे वो नेचुरोपैथी में उसको कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि वो ऐसे ही बनते थे, स्टडी वगैरह नहीं किया था। तो मैंने उनको कहा कि अभी एक काम करो, वार्ड बॉय को मार्केट में भेजो और लेके आओ गाजर के पत्ते, क्योंकि गाजर से गाजर के पत्ते में ए विटामिन 30 गुना ज्यादा है, 30 टाइम्स मोर, एंड आयरन इज 8 टाइम्स मोर। तो वो गया मार्केट में, वो वहाँ जो बेचने वाला था उसको मिला, वो बोले गाजर के पत्ते चाहिए। बोले गाजर के पत्ते कौन खाता है, ये गाजर ले जाओ ना, गाजर रखे। वो पत्ते वहाँ फेंक दिए। नहीं, मुझे बताया कि गाजर के पत्ते ही लेके आओ। तो गुनपाट में उसने पत्ते भरे सब। वो बोला कितने पैसे देना? बोला तू काय को मेरे को देता है, मैं तेरे को देता है पैसे, तू कचरा लेके जाता है। अभी आपको पता चलेगा कि गाय और भैंस को चश्मा क्यों नहीं लगता। पत्ते खाते हैं जिसमें ए विटामिन इज 30 टाइम्स मोर। आप बोलेंगे नहीं वो कंप्यूटर नहीं देखती ना इसीलिए। अरे वो बंदर जो है ना उसको यहाँ से वहाँ छलांग लगानी पड़ती है 20 फुट लॉन्ग। वो आपके कंप्यूटर से भी ज्यादा है, एक्यूरेट छलांग लगाता है, गिरता नहीं है नीचे। मरते दम तक चश्मा नहीं रहता उसको। नेचुरल, प्राकृतिक, सब बातें प्राकृतिक रहता है। तो सुबह उठ के
हाँ तो वो महिला की बात करूं पहले, वो खत्म कर दूं। तो वो लेके आया, वो महिला को मैंने गाजर का पत्ते का जूस देना शुरू किया दिन में 3 बार, और पेट पे ठंडे पानी की पट्टी, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो हजम होना चाहिए। अभी आप शायद पूछेंगे ये ठंडे पानी की पट्टी क्या है, तो आपको ये भी प्राकृतिक समझा दूं। आप कंस्ट्रक्शन जहां चल रहा होगा वहां रेती का ढीला पड़ा हुआ होता है, रेती का ढीला, वो पानी मारी हुई रेती है, कुत्ते आके वहां बैठते हैं, कितना भी भगाओ 5 मिनट में फिर आएंगे, फिर बैठेंगे पेट रख के। क्यों? उनको मालूम है कि डाइजेशन ठिकाने पे लाने के लिए मेरा पेट ठंडा होना चाहिए। कुत्ते को मालूम है, गुजराती में कहते हैं ना, हमें मानसो डोट डायस है, डोट डायस। उनको ये मालूम होता है कि हिमालय की ओर गए तो भूख बढ़ जाती है, राजस्थान की ओर गए तो भूख मर जाती है। अरे तो हिमालय में काय को जा रहे हो, यहाँ हिमालय पैदा करो ना, ठंडे पानी की पट्टी रखो। ऑटोमेटिक डाइजेशन जाने पे आ जाएगा। तो मैंने वो काम किया, 10 दिन में उसका आंख का परू बंद हो गया। 10 दिन में आंख का परू बंद हो गया। 1.5 साल हो गया। मेरा बिदड़ा में लेक्चर था, बिदड़ा में कोई आए हुए है? हाँ, आप आए हुए। बिदड़ा में मेरा लेक्चर था। यहाँ तो मैं 1 घंटा लेक्चर दे रहा हूँ, वहाँ 18 घंटे लेक्चर होता है, 6 घंटे के 3 सेशंस, ओनली 5 मिनट्स। तो ये 6 घंटे के 3 सेशंस वहाँ रहते हैं। तो वो बिदड़ा के लेक्चर में वो महिला आई थी और किसी के भी सपोर्ट के बगैर 3 दिन घूम रही थी, पूरे कैंप में घूम रही थी। लेक्चर को तो अटेंड करती है, मगर इसका मतलब ये हुआ कि उसकी नजर काफी सुधर गई। तो ये अलग अलग टाइप के जूसेस मैं मॉर्निंग में लेता हूँ। पत्ते, पालक के पत्ते, पालक के पत्ते जिसको डाइजेशन के प्रॉब्लम है, पालक का जूस लीजिए। पहले दिन ज्यादा मत लीजिए, नहीं तो दूसरे दिन काफी दौड़ना पड़ेगा टॉयलेट। शुरुआत में आदत नहीं तो आधा कप, बाद में पौना कप, बाद में 1 कप, करके 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 2 महीने में 1 गिलास। तो ये सब्जियों के बाद आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो किताब में काफी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि समय की पाबंदी है। जब आप पूरे हेल्दी हैं तो और अलग टाइप के जूस ले सकते हैं, जैसे फ्रूट जूसेस है। मैं एप्पल जूस भी लेता हूँ, क्योंकि एप्पल जूस ये पेक्टिन नाम का एंजाइम है। अभी एंजाइम की बात करने को समय नहीं है, मगर वो आपका पेट का सूजन और अल्सर क्योर कर देता है। इतना सुंदर रहेगा। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल लेता हूं क्योंकि ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम है। ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम प्रोटीन पचा देता है। कभी कभी डकार आते, तो वो पचाने का काम ब्रोमेलिन एंजाइम करता है। तो अलग अलग ढंग के जूस जैसे मुझे पसंद आए उस रंग के करता हूं। नेक्स्ट, खान पान क्या होता है। मेरी थाली काफी बड़ी होती है, ये छोटे थाली में खान पान नहीं करता, काफी बड़ी थाली होती है, मगर उसमें पहले रहता है सूप, वेरियस टाइप्स ऑफ सूप। आज ही मुझे पाटिल साहब ने पूछा था कि भाई सूप कैल्शियम रिच कौन से है। कैल्शियम रिच सूप आपको मालूम होनी चाहिए। बेबी कॉर्न, छोटे छोटे कॉर्न आते हैं, उसका सूप बनाओ, बेबी कॉर्न सूप। आपका नेक्स्ट टाइम का मेनू बेबी कॉर्न सूप से शुरू होना चाहिए। चॉकलेट, एप्पल, बहुत सुंदर सूप बनता है और काफी पसंद आता है। मशरूम सूप वंडरफुल। बाम्बू का सूप, अरे बाम्बू इतने मिलते हैं बोरीवली स्टेशन पे, मैं मजा आता है मुझे देखने को। बाम्बू का सूप बनता है, कैल्शियम रिच। तो आप कंप्लेंट नहीं करेंगे हड्डी में यहाँ दुखता है, स्पॉन्डिलाइटिस है, यहाँ दुखता है, कैल्शियम रिच सूप पियो। आपको वो गोली खा रहे हैं डॉक्टर की, कुछ जरूर नहीं है। बॉडी पूरी एब्सॉर्ब करती है ये कैल्शियम, आपको जहाँ चाहिए वो। तो पहले मैं अलग अलग ढंग के सूप पीता हूँ। किताब में काफी लिखा है कौन से सूप आप पी सकते हैं। तो ये अलग अलग ढंग के सूप है। बाद में सेकंड टाइम तो मेरा खाना 3 कोर्स होता है, 3 कोर्स होते हैं खाने में। पहला सूप, सेकंड कच्चा खा रहा हूँ, यानी जितनी कच्ची चीजें हैं, मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, पीट के पत्ते, ये पत्ते हुए। बाद में मोगरी, मूला, मूले के पत्ते ये खा रहा हूँ। गाजर, गाजर के पत्ते जो मिले वो, कंप्लेंट नहीं करता हूँ नहीं मिल रहा है,
जो मिले वो, शिमला में काफी एंजाइम है उसमें, तो ये सारी चीजें मिक्स करके कटोरी में लेके मैं कच्ची चबा चबा के खाता हूँ और बाद में मैं खाना खाता हूँ। दैट इज कॉल्ड द 3 कोर्स मील। मतलब मैं खाना खाता हूँ, मैं भात नहीं खाता हूँ, मिले तो पुलाव खाता हूँ। क्यों? पुलाव में मैं मिसेस को बोलता हूँ कि एक दिन तिनला डालो तो तिनला पुलाव बन गया। मेरे पेट में तिनला गया, वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन गोभी पुलाव बनाओ, मेरे पेट में गोभी गया। एक दिन फ्लावर पुलाव बनाओ तो मेरे पेट में फ्लावर और ब्रोकोली गया। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी सब्जियां आपके पेट में जाएगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब्जी में ही सारे एंजाइम, सारे विटामिन हैं, सारे मिनरल हैं। बाद में रोटी, तो रोटी के बदले मैं तो हमेशा कहता हूँ पराठा बनाओ, क्योंकि पराठे में फिर आएगी सब्जी। जैसे बनाया आलू पराठा, गोभी पराठा वगैरह वगैरह, अलग अलग ढंग के पराठे बनाए, गाजर पराठा। तो ये सारा मेनू मेरे थाली में रहता है। चटनियाँ अलग अलग वैरायटी की रहती है, जैसे मैंने अभी बताया टमाटर की चटनी वगैरह वगैरह। पेरू की चटनी बहुत सुंदर बनती है। पेरू अमृत कहते हैं हिंदी में, उसकी चटनी बहुत सुंदर बनती है। तो ये अलग अलग ढंग की चटनियाँ मेरे थाली में रहती है। ड्राई चटनी, वेट चटनी। मतलब ये हुआ कि मैं सब खाता हूँ, बहुत रिच खाता हूँ, बहुत सुंदर खाता हूँ, मगर दूसरी बार रिपीट करता हूँ कि मेरा पेट केमिकल टैंक नहीं है कि जिसमें मैं फॉर्मल्डिहाइड डालूं, कास्टिक सोडा डालूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूं। मेरा पेट केमिकल टैंक नहीं है। और आखिर में मैं छाछ पीता हूँ जो खट्टा नहीं हो, उसमें थोड़ा हींग डालता हूँ, क्योंकि हींग में एक एंजाइम है जिसका नाम है पेरोक्सीडेज, और वो पेरोक्सीडेज एंजाइम आपका डाइजेशन सुधार देता है, लीवर ठिकाने में लाता है। तो इस ढंग का मैं खाना खाता हूँ। तो बोलिए, ये खाना खाने से 1998 से 2015 मेरे घर में डॉक्टर का बिल ही नहीं है। नो डॉक्टर। मैं गया तो सर्टिफिकेट देने के लिए भी डॉक्टर नहीं है। मैं तो सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, वो आज छोड़ दो। डॉक्टर ही नहीं है। ना तो पत्नी को डॉक्टर है, ना तो मेरे का डॉक्टर है, ना तो लड़के को डॉक्टर है। किसी को भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और मेरा दिमाग प्राकृतिक चिकित्सा से इतना सुधर गया, पहले ठीक था मगर बाद में सुधर गया, कि 64 मेरी उम्र में मेरे क्लास में LLB फर्स्ट में 156 लड़के थे जो काफी यंग, 35-30 साल के थे। मैं ही बुढ़ा 64 साल का, मगर उसमें से 52 जन पास हो गए, वो मैं था 52 जन में। सेकेंड ईयर को ये 52 जन में से 27 जन पास हुए, उसमें मैं था बुढ़ा 66 साल। थर्ड ईयर में ये 27 में से 16 पास हो गए, वो 16 में मैं बुढ़ा था 66 साल का। और वो 17 में जो कुछ बचे, उसमें से बार एग्जाम 9 जन ने दी, उसमें से भी मैं पहला ही पास हो गया। प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा। आप जो पढ़ते हैं ना, वो शक्कर खाने से कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। शक्कर बंद कर दो, आपको पता चलेगा अरे मेरे याद में रह रहा है सर। इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन सुधर जाता है, डाइवर्शन नष्ट हो जाता है। तो ये बातें आप जरूर कीजिए, और मुझे गारंटी है कि आपको यदि इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप प्राकृतिक चिकित्सा की और जानकारी मुझे डेफिनेटली पूछेंगे। थैंक यू। कितनी बार करनी है उसके बारे में बताइए। हाँ, बता दो 5 आप ही आ जाइए। फेस कीजिए। ये पट्टी सीने पे नहीं, पेट पे, यहाँ, मगर यहाँ थोड़ी ज्यादा फैली हुई, क्योंकि आपकी जो लिवर है वो लिवर यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक है और यहाँ तक है। जब सूजन आती है, आइटिस, आपको मालूम है कि आप रास्ते से चल रहे हैं, आपको हाथ में किसी ने पत्थर मार दिया, सूजन आ गई, तो घर पे जाके क्या करते हैं, बर्फ रगड़ देते। यहाँ भी आइटिस मतलब सूजन आ गई लीवर को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पानी की पट्टी यहाँ रख रहा हूँ।
ठंडे पानी की पट्टी रख रहा हूँ। तो ये लीवर, पैंक्रियाज यहाँ से यहाँ तक फैला है, इसीलिए पट्टी यहाँ तक आनी चाहिए, और आपका इंटेस्टाइन यहाँ तक है, इसीलिए ये यहाँ से थोड़ी नीचे आनी चाहिए। तो ये पट्टी ऐसे रहेगी। अभी कैसे बतानी, हाँ बेटी, कैसे लगानी वो बताता हूँ। जाड़ा कपड़ा जितना हो, क्योंकि ठंडक पकड़नी चाहिए, टर्किश टॉवल या तो अभी जो पैंट का जाड़ा कपड़ा आता है, नैपकिन वगैरह, जितना कपड़ा जाड़ा हो उसको पानी में भिगाओ, उसको स्क्वीज करो और सीधा फ्रिज में रख दो। सीधा फ्रिज में रख दो, 3 पट्टी रख दो हमेशा के लिए। जब बीमारी हो तो दिन में सुबह एक बार, रात को एक बार, तो आपकी सूजन वगैरह तो यूं ही निकल जाएगी, क्योंकि आर्टिस का मतलब सूजन। मगर वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सूजन आपके समझ में नहीं आएगी, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहाँ ही है, तो जैसे आप पट्टी रखना शुरू कर देंगे वैसे वो भी सूजन जाएगी। और वेरी इंटरेस्टिंग, आपको यदि बुखार आ गया तो बुखार आने की वजह भी यही है, लीवर। लीवर को ठिकाने पे लाने के लिए उसको थोड़ा सा ठंडा बनाना चाहिए। आपके पेट पे चर्बी होती है, इसीलिए मैंने फ्रीज की पट्टी बताया। तो वो पट्टी रखेंगे, दिन में ज्यादा बार रखिए, अभी 4-5 बार रखिए। कौन सा भी फीवर हो, वो हांगकांग फीवर, मलेशिया फीवर, कौन सा भी हो, निकल जाता है, वो रहता नहीं है। क्योंकि माइक्रोब्स इज नथिंग, रोग जंतु कुछ नहीं है, सॉइल इज एवरीथिंग। बुक्स, एक मिनट, लास्ट बात बता दो, मैंने हर एक लैंग्वेज में 4 बुक्स लिखे हैं। जैसे पहले क्योर विदाउट मेडिसिन, रोग आणि विकार बरे करा औषधाशिवाय, रोग भगाडो बिना दवाए, बिना दवा स्वास्थ्य बना। दूसरा 45 to 50 अलग अलग ढंग के पेशेंट है, उसको क्योर कैसे किया, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरोपैथी, सेकंड किताब है। थर्ड किताब ईटिंग हैबिट्स, अभी आपने सुना होगा ये सब जो गड़बड़ है वो यहाँ है, ईटिंग हैबिट्स, डाइजेशन एंड डिसीजेस, वो तीसरा किताब है। और चौथा किताब जो मैंने बात की अभी, एंजाइम्स, जैसे अनारस में कौन सा एंजाइम है, एप्पल में कौन सा एंजाइम है, शिमला मिर्च में कौन सा एंजाइम है, वो एंजाइम मुझे कैसे फायदा करेगा, वो चौथा किताब है। एंजाइम्स, ग्लैंड्स, हार्मोन्स वगैरह वगैरह, प्राकृतिक, प्रकृति से आप कैसे मिला सकते हैं। एंटीबायोटिक लेने के लिए दवा की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक आपकी लीवर बनाती है, 6 टाइप के एंटीबायोटिक बनाती है, अभी समय नहीं इसीलिए बात नहीं करता।